Department of Public Enterprises, revenue from operation. Last year our revenue from operation was about 39,000 crore. So they had given us the ambitious target of 47,000 crore for revenue from operation, and we have been able to all achieve it by our revenue from operation stands at 47,146 crore. This MOU is signed between REC and PFC. PFC is our holding company, but this MOU is ultimately finalized by Department of Public Enterprises. This is one of the parameters of the annual MOU which we signed under the supervision of Department of Public Enterprises. The MOU with PFC. Yes. In fact, last week we were in Rotterdam attending this World Energy Congress, and we had the opportunity to interact with the world leaders and the investors and the developers which had come for the development of green hydrogen and green ammonia. World over, the research and development is going on to bring down the cost of green hydrogen. Since it is very difficult to, there are safety related issues with regard to storage and transportation of green hydrogen. That's why industry has thought that it would be better to convert green hydrogen to green ammonia. It is easier to transport and store green ammonia. Right now, the cost of production of green hydrogen is coming around $5 to $6 per kg. This is the real technological challenge, and all the countries which are taking active participation in the energy transition world over, they are coming together. They talk about technological coalition which will attempt to bring down the cost of production of green hydrogen to about $1 per kg. That is the target. Like you must have observed that when solar energy was introduced in the country, that time the tariff was as high as 16 rupees, 17 rupees per unit. Now you see the solar oil is the cheapest. It is costing only 2.5 rupees per unit. So similarly, when the scale of operation of green hydrogen and green ammonia increases, the cost will definitely come down. The improvement in electrolyzer technology will help in bringing down the cost, and we are quite hopeful. There are other green hydrogen and green ammonia projects in the pipeline which we are actively considering, and more of such green hydrogen and green ammonia projects are in the pipeline because world over there is huge demand of green ammonia. A lot of, in fact, Secretary Power had led this delegation to World Energy Congress in Rotterdam. There they had deliberated that European countries, Germany, Italy, Sweden, they're all interested to import green ammonia from India. Similarly, interest has been shown by Japan. There are other countries who are willing. Now, Government of India has launched this green hydrogen mission, and I am quite sure that the entire ecosystem of green hydrogen and green ammonia will get a boost by the proactive policies being initiated by Ministry of Renewable Energy and as well as Ministry of Power, Government of India. Now coming to e-mobility related issue. So far we have sanctioned about 10,000 electric buses, and we are targeting to sanction about 50,000 electric buses along with the associated charging infrastructure. And these electric buses are coming in the metropolitan region, particularly those cities having population of more than 40 lakh actually. So we have already identified about 10-11 cities where these electric buses are going to become more prevalent. There we are planning to finance not only original equipment manufacturers, OEMs, but also the operators of electric buses. Standing loan to private sector is only about 10%. 90% is to the state utilities. But as I told you that our ambition is to increase our renewable energy portfolio. Renewable energy projects are coming in mostly in private sector. As the share of renewable energy business increases, our loan to private sector will also increase from 10%, which is at present 10%, it will increase to about 30% by the year 2029-30. Last time I had mentioned that initially we had 36 projects stress assets, 17 had already been resolved and 19 were in the process of resolution. So we have been able to resolve Lanco Amarkantak now. Bhatreshwar is in the final stage. Nagai is also in the final stage. And TANS Energy has already
resolved. Now, about 9 projects are heading towards liquidation, for which we have already made 100% provisioning. And for that we have already carried out. हुई है आरडीसी के दौरान, आरडीसी क्या कुछ कर रही है और जान चाहते कि करके आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और क्या कुछ आज का ये पूरा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल पूछने के लिए। मैं बीके से हूँ, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आरडीसी। जैसा आज हमने अपने रिजल्ट प्रस्तुत किए आप सभी लोगों के समक्ष, विगत वर्ष में 23-24 में आरडीसी की परफॉर्मेंस कई मापदंडों पे बहुत अच्छी रही है। इस साल में, गए साल में हमने 3,58,000 करोड़ के सैंक्शन किए नए प्रोजेक्ट, और ये जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, रिन्यूएबल में है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, ई मोबिलिटी में है, रिन्यूएबल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, पावर और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में है। तो हमने वैरायटी ऑफ सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इस साल में सैंक्शन किए। इसके साथ साथ हमारा डिस्बर्समेंट भी इस साल में हाईएस्ट एवर डिस्बर्समेंट है, और साथ ही जो प्रॉफिट है जो कि हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है वो भी हाईएस्ट एवर है। 14,000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने इस पूरे साल प्रॉफिट की हाइलाइट्स क्या क्या है, क्या कुछ चीज़ें अगर आप उससे अगर मीडिया को बता सकते हैं। सो की हाईलाइट है, मैं क्वार्टर ना बता के इसको सालाना का जो हमारा रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो हमने टोटल सेंक्शन 3,58,000 की, और हमने टोटल डिसबर्समेंट 2,68,000 की। दोनों ही अब तक के सर्वश्रेष्ठ हमारे नंबर हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में हमने 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हमने सेंक्शन किए, जबकि हमने इससे पिछले साल में मात्र 21,000 करोड़ के किए थे। तो जो हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे और अपना पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी को और फर्दर सेंक्शन और फर्दर डिस्बर्स करेंगे, तो हम कर भी रहे। इसके अलावा हमने सोलर में करीब 20,956 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किए। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के 51,000 करोड़। लार्ज हाइड्रो वो हमने करीब 32,000 से ज़्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट हमने सेंक्शन किए। पम्प स्टोरेज जो कि नई टेक्नोलॉजी और अभी पिछले 1-2 वर्षों से देखने को मिल रहा है, उसमें हमने करीब 28,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सेंक्शन किए। ग्रीन हाइड्रोजन जो एक नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोगों ने अभी पिछले 1 साल से सेक्शन शुरू करना शुरू किया है। वो टेक्नोलॉजी पूरे देश के लिए नई टेक्नोलॉजी है। उसमें हमने करीब 8,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेंक्शन किए। ई मोबिलिटी में 7,200 करोड़। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग अगेन 3,200 करोड़। विंड में हमने करीब 3,500 करोड़ का सेंक्शन नए प्रोजेक्ट सेंक्शन किए, और हाइब्रिड में करीब 10,000 करोड़। ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा था आपको, ये लार्जली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने थर्मल के भी प्रोजेक्ट किए हैं करीब 8,800 मेगावाट, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी नंबर हमने आप लोगों के सामने साझा किए हैं प्रेजेंटेशन, जो कि हमारी साइट पे भी आप अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। क्या कुछ प्रॉफिट्स सर ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या कुछ प्रॉफिट है, कुछ बात बताना चाहेंगे। सो ग्रामीण क्षेत्र में पहले 2 मुहिम चली थी। पहले गाँवों का विद्युतीकरण जो कि कंप्लीट हो गया है। आज देश में हर एक गाँव में बिजली है। दूसरी मुहिम थी जिसमें हमने बोला था, भारत सरकार ने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला था कि हर घर बिजली, घर घर बिजली, और उसको सौभाग्य जो एक कार्यक्रम है उसके थ्रू हम हर घर तक लेके, और जितने बिलिंग हाउस होल्ड थे लगभग 2.86 करोड़ जिनके घरों में बिजली नहीं थी उनके घरों तक बिजली को पहुँचाया गया। ये दोनों काम गाँव में हो चुके हैं। बट गांव में हम जानते हैं कि फिर और भी नए लोग होते हैं, नए घर बनते हैं, उनके लिए भी हम अभी आरडीएसएस में भी उनके घर के गांव के जो रह गए, कोई छोटे छोटे मजरे टोले इस टाइप के जो रह गए, वहाँ पे भी विद्युत और विद्युत से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने का काम आरडीएसएस स्कीम में भी होगा। सर विद्युत की बड़ी जो प्रॉब्लम होती है गांव वाले क्षेत्र में वो होती है पानी की, सिंचाई की। तो उस तरह कोई प्रोजेक्ट अगर बताना चाहें कोई, तो काफ़ी सारे प्रदेशों में जो एग्रीकल्चर के लिए जो पंप यूज़ होता है उसकी जो बिजली है काफ़ी स्टेट ने उसमें सब्सिडी की हुई है फ्री, तो वहाँ पे बिजली की जो खपत है उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ऐसे काफ़ी प्रदेश हैं, कुछ प्रदेश हैं जो बहुत कम चार्ज भी लगाते, सब्सिडाइज रेट पे लगाते, और किसान अधिकतर उन्हीं एग्रीकल्चर पंप को यूज़ करते हैं अपने खेतों की सिंचाई होती है।
तो मैं कह सकता हूँ कि वो सिंचाई का पानी जो पंप को कर रहे हैं लगभग सारे ही प्रदेशों में या तो फ्री आ रहा है या तो बहुत सब्सिडाइज फ्री। सर कई गाँव वगैरह में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कहीं गाँव ऐसे जहाँ उस बारे में जरा देखिए थोड़ा सा देश में अब बिजली की जो व्यवस्था है काफ़ी मजबूत है। हम देख रहे हैं कभी आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि बिजली की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। हम जो हमारी जानकारी है वो लगभग 23.5 पौने 24 घंटे बिजली अर्बन एरिया में आ रही है और लगभग 21 घंटे के आसपास गाँव के एरिया में आ रही है। ये औसतन नंबर है, कुछ गाँव में शायद कम भी आ रही है, कुछ गाँव में 21 घंटे से ज़्यादा भी आ रही है। औसत जो है लगभग 21 साढ़े 21 घंटे की बिजली आ रही है। तो बिजली की क्षेत्र में सारे ही यूटिलिटी हैं, सारे ही प्रदेश के यूटिलिटी हैं, सब ने अच्छा काम किया है। उसका रिजल्ट हम आप देखते हैं कि आज बिजली की व्यवस्था बहुत सुंदर हो गई, बहुत अच्छी हो गई है, हर जगह बिजली है। इंफ्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। उस बारे में अगर उसमें देश की जब ग्रोथ होती है तो फिर बिजली सबसे बड़ा ड्राइवर है देश की ग्रोथ करने में। और उसमें जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ेगी बिजली की डिमांड भी आएगी। तो हमने देखना शुरू भी किया है बिजली की डिमांड को बढ़ने की वजह से काफ़ी नए बड़े संयंत्र, उनको बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, उनका निर्माण अभी तय किया गया है और काफ़ी निर्माणाधीन है, चल रहे हैं उनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और ये आने वाले 2030 तक का हम लोगों ने एक प्लान बनाया, भारत सरकार ने एक प्लान बनाया कि 2030 तक हमारी बिजली की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो उस सबका एक डिटेल में प्लान है जो कि करेंटली अंडर 500 गीगावाट 2030 तक लगाना ही लगाना है, 2070 तक नेट जीरो होना ही होना है। हम लोगों ने भी ग्रीन जो फंडिंग है उसके लिए हम लोग एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और पिछले साल की ग्रोथ देखिए करीबन 500% अपने ज़्यादा से इस बार। तो ये मोमेंटम जारी रहेगा आगे और जिस तरह से रिन्यूएबल्स के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास, जब किसी भी सोर्स आए, लेकिन हाइड्रोजन आए, सोलर आए, विंड आए, हम लोग उसके लिए करेंगे प्रोजेक्ट फंडिंग और REC कमिटेड है प्रोजेक्ट फंडने के लिए और हम लोग अच्छे रेट पर उनको फंड कर रहे हैं, मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट से। तो हम लोग जो देश के लिए है उसमें पूरी तरह से इस क्षेत्र में योगदान करेंगे। टारगेट्स आपने खुद सेट किए चीज़ों की अगर बताना चाहें तो हमने ये सोचा है कि हम रिन्यूएबल में खास तौर से आज रिन्यूएबल हमारा टोटल लोन बुक में 5% से भी कम है, बट हम इसको लगभग 30% तक लेके जाएंगे। वो तभी होगा जबकि हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ाना है। और अगर आप हमारे सैंक्शन और डिसबर्समेंट की तरफ देखें तो हमने फोकस बनाया हुआ 21,000 करोड़ हमने लास्ट ईयर किया था, उस तरीके से 1,37,000 करोड़ इस साल में किए गए इसमें। तो इससे करके हम ये मानते हैं कि हमारी 2030 में जो लोन बुक वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास तक पहुँचे केवल कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने सारी चीज़ें बताई दी हैं। तो इस साल में अगर हम देखें तो हमारे डिस्बर्समेंट भी और वर्षों में से बहुत ज़्यादा रही हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 47,146 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल में 39,208 करोड़ रुपये थी और जो 20% ज़्यादा है। और टोटल इनकम भी है 47,000 और नेट इंटरेस्ट इनकम 16,167 करोड़ रुपये है, पिछले साल में 13,714 करोड़ रुपये की 18% ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट पर ही ऑल टाइम है ही है, तो आज तक अभी ये चीज़ नहीं हुआ। 14,019 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल में सिर्फ 11,055 करोड़ रुपये था, तो 27% की बढ़ोतरी हुई है। इससे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो भी 15,063 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल में 10,084 थी, जो कि 49% की बढ़ोतरी है। तो इसी तरह यील्ड जो है वो भी हमारी बढ़ी है और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हुई है, जिससे कि स्प्रेड और NIM भी कंपेरेटिवली मेंटेन रहे हैं।